Hello everyone, myself Vidhi Godha, Core Committee Member of Aurangabad Vikasa 2022. Welcome you all on behalf of Aurangabad Vikasa. Aurangabad Vikasa, as always, brings you another amazing podcast which will add immense value to you, to your knowledge and upscale your understandings. Today, we have with us very knowledgeable yet very down-to-earth person. The person who is CA by education, tutor by passion and YouTuber by hobby. Let's welcome the man himself, Prashant Sada sir. Welcome sir. Thank you so much. So, sir, to start with this podcast, my first question is about your journey. How you started and how did you came till here? Please tell us about your journey. My journey as a teacher? As a teacher, as a CA student, as a CA. So, frankly speaking, my journey is very simple but yet complicated, I can say. I never thought I will become a chartered accountant. I will go for commerce rather. I was more inclined towards science. I always wanted to be like engineer or doctor something, because in our society usually people feel that if a student is a bright student, he generally takes science. Frankly, you can say expectation of getting into science and doctor engineering was after almost like passing my 7th standard, because before 7th standard I was like a dumb kind of student who always, not a dumb from study point of view, it was a dumb student from playful. I was always playful. I was never interested into studies, and my scores were like 50-60%, hardly. So someone scoring 70%, 80% was a very studious student according to me in my childhood days of 5th, 6th and 7th standard. Post 7th standard my school changed and I was inclined towards studies. But then 8th standard, 9th standard my score was really good, so I thought of taking science. But the moment it was like in a upward graph, overconfidence bhi aa gaya, and overconfidence changed the game. And my 10th standard score was only 70%. So after that I decided I should go for commerce, and then commerce mein best career kya hai, to CA career hai. So I thought doing CA. When I went to Pune, then I decided ki I should start my journey into CA as a teacher, because when I came to Pune I first time saw Zavre sir teaching so many students and on that dais and the feel of teacher, So I thought ki I should get into teaching, because I always used to admire him, and that way I went into teaching part. Okay. So as you said, you were not so brilliant kid. But as I have read about your achievement, you stood first in Nanded district in economics in 12th standard. You also ranked 10th in 12th commerce boards and AIR 11 in CA foundation. So how should I believe that you were not so brilliant? See, frankly, after getting into commerce, I was a bit sincere about my career. I paid more attention towards my career, and then I got this rank of 12th standard. I came to Pune with a sole objective of doing CA. With a focus, I did my CA, and I got foundation mein rank. And then after that, inter and final, I got in first attempt. Though I passed in first attempt, but इंटर एंड फाइनल का भी स्टोरी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत आसान स्टोरी था. फाउंडेशन में रैंक था तो इंटर में आसानी से नहीं हुआ, बट येट आई मैनेज्ड. एंड ऐसा नहीं है कि वहाँ पर रैंक की उम्मीद नहीं थी, वहाँ पर भी रैंक की उम्मीद थी, बट समहाउ वॉल्यूम मैनेज नहीं हो पाया. फाइनल में तो खैर it was like a samandar for us, and that time we used to join only practical subjects and we used to get a study leave of only 4 months. So that way final manage कर pass करना with a rank was my dream, but anyways वो नहीं पूरा हो पाया. So ये फाइनल हो गया, ये सब हुआ, तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट कब जागा इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में? See, finance was my all-time favorite subject. During my student life also, finance I used to love like anything. मेरे आसपास मेरे जितने फ्रेंड्स थे उनका फाइनेंस का क्वेरी उस वक्त भी मैं ही सॉल्व करता था. रादर मेरा एक फाइनल का किस्सा है. मेरा फाइनेंस इतना स्पेशल था कि मेरे SFM, जिसको माफा बोलते थे उस वक्त, अभी SFM है, तो उस वक्त मेरा SFM का पेपर के लिए जब मैं जा रहा था, सब लोग मुझे सेंटर के बाहर बोल रहे थे कि आज तो तेरा पेपर है, आज तो तू स्कोर करेगा, एकदम तोड़ अच्छा स्कोर करके आएगा. आई ऑल्सो वॉज अंडर दैट बिलीव कि इतना अच्छा प्रिपरेशन किया है तो मेरा स्कोर होने वाला है. बट देन पेपर इतना टफ आया था जिसकी लिमिट नहीं है, एंड एवरीबडी इन द हॉल वॉज पैनिक्ड. ऑलमोस्ट 60% ऑफ द क्राउड वॉज आउटसाइड द सेंटर आफ्टर 1 आवर. एंड फिर वो जो 40% क्राउड था ना, उसके साथ ऐसा लग रहा था बाप रे, पेपर देना एक टास्क हो गया. एंड बट एक बात की उम्मीद थी कि अगर 40% लोग ही यहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब जो अभी लिख कर कंटेंट लिख देगा अच्छे से, वो पास तो होने वाला है, क्योंकि पासिंग परसेंटेज एंड रेशियो उसका टेंशन ही नहीं है. सो फाइनेंस वॉज ऑल टाइम फेवरेट. एंड इकोनॉमिक्स में तो खैर मेरा ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी है फाउंडेशन में वगैरह. इकोनॉमिक्स मुझे पहले से बहुत पसंद था.
सो पढ़ाना ही है तो ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाओ जो दिल से पसंद है. अपॉर्चुनिटी तो बहुत से सब्जेक्ट्स में आज भी मिलती है, बट फिर मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है. मुझे इनफैक्ट अकाउंट्स में भी बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि फाउंडेशन में अकाउंट्स आई स्कोर 96 मार्क्स आउट ऑफ 100. इट वाज राइटिंग में पेपर, नॉट एमसीक्यू. सो स्टिल. तो सर अभी फाइनेंस एज अ सब्जेक्ट इन सीए एंड एक्चुअल लाइफ में फाइनेंस, सो इज इट सेम, डू दे गो हैंड इन हैंड or like there is difference in practical Okay, life? means you are asking कि finance as a subject and as a career. हाँ. Okay, so finance as a career and subject, I would say they exactly not go hand in hand, but yes, यहाँ के बहुत से जो तुम क्लासरूम में कॉन्सेप्ट सीखते हो वो वहाँ रियल लाइफ में यूज़ होते हैं. मेनली प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग, ये सब चीज़ें रियल लाइफ में बहुत यूज़फुल है. आज अगर आप मर्जर्स, एक्विजिशंस के वैल्यूएशंस देखोगे तो सब डिस्काउंटिंग पे ही होता है. सो दैट वे रियल लाइफ में फाइनेंस बहुत यूज़फुल है जो क्लासरूम में हम पढ़ते हैं. बट येस, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू ऐड हियर कि फाइनेंस एज अ करियर जब आपको जाना होता है ना, तो आपको उसमें पॉलिशनेस लाने के लिए, आपको उसको पॉलिशनेस और बढ़ाने के लिए आपको उस करियर में काम करना बहुत ज़रूरी होता है. तो सर वो जो गैप है एज अ करियर एंड एज अ पढ़ाई का, वो कैसे हम लोग ब्रिज कर सकते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल? आई वॉज इनफैक्ट डिस्कसिंग विद महेश सर कि वो जो करियर और ये जो क्लासरूम का गैप है ना, इसको फिल करने के लिए ICAI के प्लेटफॉर्म पे हमें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को और बुलाना चाहिए जो आज प्रैक्टिकली इन फील्ड में काम कर रहे हैं, ताकि वो आपको प्रैक्टिकल इंसाइट शेयर कर पाए कि कैसे आप इनको बेटर करियर बना पाए. और उसमें भी ऐसा होता है कि ये एकदम निश एरिया में काम करने वाले, फील्ड में काम करने वाले ये लोग हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है, तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में आपको प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग ये वर्ड के आगे कुछ नहीं पता, जबकि ऑडिटिंग में आप प्रॉपर वाउचिंग वगैरह सब कुछ सीख चुके हो. तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, उसमें मेन कंटेंट्स क्या होते हैं, कहाँ ध्यान देना चाहिए, और वो कैसे बनाया जाता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जब तक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आके आपको एज ए स्टूडेंट यहाँ पे शेयर नहीं करेंगे ना, तब तक वो ब्रिजिंग ऑफ द गैप नहीं हो पाएगा. इवन आई वॉज प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 2006 to 2013, तो मेरा प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करता हूँ काफ़ी बार मेरे स्टूडेंट्स के साथ. तो मतलब क्या है प्रैक्टिस? फाइनेंस में ही मेरा प्रैक्टिस था, और वो भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में ही मैं काम करता था मेनली. हाँ, तो सर CA स्टूडेंट्स आर नॉट यूजुअली अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, फाइनेंस स्पेशली, क्योंकि CA इज मोर अकाउंटिंग ड्रिवन. तो व्हाट टाइप ऑफ वर्क कल्चर, पोजीशंस एंड अपॉर्चुनिटीज आर देयर, मतलब क्या प्रोफाइल है फाइनेंस में? एज अ फाइनेंस देयर आर n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज. जस्ट फाइनेंस एक निश एरिया है, मगर उसके अंदर बहुत से अपॉर्चुनिटीज है. अगर आप फाइनेंस में स्पेशलाइज करो तो आप मर्जर्स, एक्विजिशंस में जा सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो, मर्चेंट बैंकिंग में जा सकते हो, आप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में जा सकते हो, इक्विटी रिसर्च में आप काम कर सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में आप काम कर सकते हो. ये सब नाम एक्चुअली आपने सिर्फ सुने रहेंगे, जबकि ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर, ये आपने बहुत अच्छे से सुना भी और जाना भी कि उनका रोल क्या है. तो जिस पर्सन को फाइनेंस एज अ कोर करियर पसंद है ना, ये सब फील्ड्स में वो अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकता है. और उसको आगे कैसे परसीव करना है इज़ वेरी सिंपल. ऐसे फर्म के साथ काम करो जो इस फील्ड में है, एज अ आर्टिकल काम करो, भले ही तुम क्वालिफाइड CEO हो, बट एज अ ट्रेनी काम करो, बोलने का मतलब है. और फिर जब तुम ट्रेनी बोलकर काम कर रहे हो, भले ही पे पैकेज तुम्हारा इंडस्ट्री से आधा है, बट तुम्हें वहाँ सीखने जो मिलेगा ना, उससे तुम जो टेक ऑफ लोगे करियर में, वो अमेजिंग रहेगा. और अभी जो बुल रन आया था, जो हमने विटनेस किया, उसमें तो बच्चों का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है, उसमें भी CA स्टूडेंट्स का, क्योंकि सब्जेक्ट है तो और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया. तो ऐसे टाइम पे आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहोगे कि पढ़ाई और मार्केट्स अगर तुमको करना है तो कैसे मैनेज करें दोनों चीज़ें? मार्केट्स और पढ़ाई कैसे मैनेज करें? देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई ऑलवेज एडवाइज माई स्टूडेंट्स टू स्टे अवे फ्रॉम मार्केट. एंड फ्रैंकली आई ऑल्सो स्टे अवे फ्रॉम मार्केट एज फार एज द डे ट्रेडिंग इज कंसर्न. क्योंकि अगर जस्ट इमेजिन करो कि आज मेरा सेशन था सुबह 9 से अभी शाम को 6-7 तक, तो अगर मेरे सेशन के ड्यूरेशन में मैं बार बार मेरे मोबाइल की तरफ ध्यान देकर ये देख रहा हूँ कि स्टॉक के क्या चल रहे प्राइजेस, मार्केट कहाँ जा रहा है, लेवल्स कहाँ दिख रहे हैं, मैंने बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, मेरे पोर्टफोलियो का क्या कंडीशन है, तो इस केस में मेरा पूरा डाइवर्जन इधर होगा और मेरा आपकी तरफ ध्यान ही नहीं रहेगा. और जो काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो नहीं हो पाएगा. एज अ स्टूडेंट आपका अभी काम है कि आप आपके करियर पे पूरा ध्यान दो. नो डाउट ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट ये बहुत अट्रैक्टिव फील्ड है, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें करियर नहीं, इनफैक्ट इसमें बढ़िया करियर हो सकता है. बट लाइफ में एक बेस डिग्री अगर अच्छी हो जाए ना, और वो भी ऐसे CA जैसी डिग्री हो जाए ना, तो आपको स्टॉक मार्केट और लर्नेड तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो स्टॉक मार्केट में.
तो आई वुड सजेस्ट कि स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट CA इंटर पास होने तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे ही आर्टिकलशिप शुरू हो जाए फर्स्ट 1 ईयर 1.5 ईयर तक आप डेफिनेटली जा सकते हो। वापस आपका ऐसा फेज आता है जहाँ पे आप फुल फ्लेज्ड क्लास कर रहे हो और पूरा फोकस फाइनल के स्टडीज़ पे डाल रहे हो, फिर वहाँ पर मैं वापस सजेस्ट करूँगा कि आप करियर को, ट्रेडिंग को हॉल्ट दे दो, स्टॉक मार्केट के करियर को। एंड अगर आपको फिर भी क्यूरियोसिटी नहीं सर मार्केट इतना बढ़ रहा है फिर वाई वी शुड नॉट गेन, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट गो फॉर SIP इन म्यूचुअल फंड वगैरह, जहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट है और आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आपका आर्टिकलशिप का सेविंग, आपका पॉकेट मनी का सेविंग आप अभी से थोड़ा थोड़ा वहाँ इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हो जब आप हॉल्ट कर रहे हो। वापस जब आप रीगेन कर लोगे, आई एम वेरी श्योर उस पोर्टफोलियो का वैल्यू भी बड़ा रहेगा, तो आपका कैपिटल बड़ा अमाउंट रहेगा। जब आप CA पास करोगे तो आप बड़े लेवल पे खेल सकते हो। सर आई हर्ड अबाउट अ थियरी कि 80-20 का रेशियो, कि जितना अर्न कर रहे हो उसका 80% लगा दो स्टॉक मार्केट में, तो जितना हाई लगाओगे उतना ज़्यादा हाई आपका रिटर्न रहेगा। तो आप ये कहाँ तक ये थियरी को बिलीव करते हो? फ्रैंकली अगर ये क्वेश्चन आप मुझे पूछ रहे हो तो मैं इसका 2 एस्पेक्ट में आंसर देना चाहूँगा। एक एज अ फॉर्मल इंटरव्यू एज अ फाइनेंस एक्सपर्ट, और एज अ फाइनेंस एक्सपर्ट एक फॉर्मल इंटरव्यू अगर रहेगा और सिर्फ फाइनेंस के एंगल से मैं फोकस करूँ तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा 80-20 ये थ्योरी बहुत अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि आपका इनकम का 80% आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट अभी से करोगे तो आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से वो अमाउंट ग्रो हो जाएगा बड़ा, और 20% आपके डे टू डे लाइफ के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उसमें गुजारा कर सकते हो। बट मैं इसका दूसरे तरीके से और बेटर तरीके से आंसर देना चाहूँगा, जो मेरा ओरिजिनल आंसर है, जिस हिसाब से मैं लाइफ जीता हूँ। मैं 80-20 के हिसाब से लाइफ नहीं जीता हूँ। मैं अपने लाइफ में बहुत सिंपल सा रूल रखता हूँ कि मेरे कमाए हुए पैसों में से एक सर्टन परसेंटेज मैं खर्च में डालता हूँ, मतलब डालता हूँ, और वो खर्चा सिर्फ मेरे लिए रहेगा, मेरे लाइफ के लिए रहेगा। लग्जरी बोलो या मेरे वैकेशंस बोलो, मेरे फैमिली टाइम बोलो, फैमिली के नीड्स बोलो, और वो नीड्स मैं डे टू डे नीड्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो नीड्स लग्जरी नीड्स भी बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो ज़िंदगी जीना है तो आज ही जीना है। आप CA बन जाओगे, मुझे बताओ CA के वक्त आपको वैसे भी करियर में बहुत पैसे नहीं लगते, और CA बन रहे हो मतलब आप पैसे की अहमियत जानते हो, आप सेविंग करोगे एज ए स्टूडेंट, मगर जब आप कमाओगे तब आपको भगवान एक मौका दे रहा है कि यार तेरे को इतना अच्छा सैलरी मिला है तो तू खर्च भी कर, तो तू कुछ पे कुछ उड़ाओ यार। और अगर तुम सोचोगे 20% ही खर्च करना है खुद पर, 80% सेव करना है, एट द एंड ऑफ 60 ईयर्स 50 ईयर्स यू विल हैव अ बिग पोर्टफोलियो। मगर उस वक्त मालूम है क्या होगा, उस पैसों से क्या करना है इसके एंड खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने उस एज में कुछ नहीं किया जिस एज में आपने करना चाहिए। सो आई स्पेंड ऑन ट्रैवल, आई स्पेंड ऑन फैमिली, आई स्पेंड ऑन फ्रेंड्स, आई स्पेंड ऑन माई लव्ड वंस, एंड फ्रैंकली मेरा रेशियो ये 60-40 है। 60 में एक्सपेंस करता हूँ, सिर्फ 60 में इन्वेस्ट करता हूँ, 40 में एक्सपेंडिचर करता हूँ। मतलब जितना उन्होंने बोला उसका डबल ऑलमोस्ट मेरा एक्सपेंडिचर का प्रोपोर्शन है, और वो इसलिए बिकॉज मेरा ये एज है अभी जहाँ मैं बहुत अपनी नीड्स पूरे करना चाहता हूँ। सर तो अब एज अ CA स्टूडेंट मेरा क्वेश्चन है कि अगर मुझे अप टू डेट रहना है, मतलब आपने बोला कि मत करो ज़्यादा अभी से ट्रेडिंग वगैरह, तो ट्रेडिंग कर करके सीखते हैं, पर अगर मैं ट्रेडिंग नहीं कर रही तो फिर भी मैं अपना नॉलेज अपस्किल कैसे करती रहूँ विदाउट ट्रेडिंग? सी इन ऐसे फाइनल लेवल यू ऑलरेडी हैव SFM सब्जेक्ट, जिसमें ये डेरिवेटिव, फॉरेक्स, इतने अच्छे अच्छे ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजीज है सब कुछ, तो ये वैसे भी तुमको सिखाए जाएंगे एज अ सिलेबस। पहले इसको सीख लो, प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चन आंसर्स में इसको इम्प्लीमेंट करके पेपर पास कर लो, एक डिग्री ले लो, फिर इसी नॉलेज को यूज़ करके आप स्टॉक मार्केट में कमा सकते हो। ये ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज मैं आज रियल लाइफ में यूज़ करता हूँ, मगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के एंगल से, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के एंगल से बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ एज अ स्टूडेंट, तुम हर बार ये क्यों सोचते हो कि तुमको अप टू डेट हर फील्ड में खुद का पैसा जला कर ही होगा? आपको अप टू डेट रहना है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, न्यूज़ के कनेक्टेड रहो, अच्छे फॉलोअर्स यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो जिनका नॉलेजेबल वीडियो रहे थोड़ा सा। और एट द सेम टाइम मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप CA के करियर के बीच में ये ट्रेडिंग का ज़्यादा मत डालो। द मोमेंट यू विल क्वालिफाई CA ना, यू आर ओपन टू एवरीथिंग, फिर तुम्हें जो करना है तुम प्रॉपरली कर सकते हो। अभी वैसे भी स्टूडेंट लाइफ में ज़िंदगी भी जीना चाहिए यार, सिर्फ पढ़ते रहोगे और किताब भी पढ़ोगे और इधर भी पढ़ोगे तो फिर जियोगे कब? तो थोड़ा अपने लिए भी टाइम स्पेंड करो। अच्छे फ्रेंड्स बनाने का चांस यही एज का होता है। आई स्टिल हैव माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स विद मी इन पुणे, जो मेरे साथ आज एक ही रोड पे रहते हैं। हम लोग सेकेंड स्टैंडर्ड से अभी तक फ्रेंड्स है, कॉलेज फ्रेंड्स भी हम अभी तक फ्रेंड्स कनेक्टेड है। सो आई स्पेंड टाइम विद देम ऑल्सो। आई एवरी टाइम डोंट स्पेंड माई टाइम गेटिंग नॉलेज, अपडेटिंग माई सेल्फ एवरी टाइम।
सर बट नॉलेज इज द नीड ऑफ आवर अभी बैलेंस कर सकते हो, वर्क लाइफ बैलेंस करो, हो सकता है, सब कुछ मैनेज हो सकता है ना। हाँ, नो डाउट आजकल नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि आज अगर आप देखोगे क्रिप्टो करेंसीज वगैरह, ये सब नई चीज़ें आ रही है, और अगर तुम इस फील्ड में पीछे रह जाओगे, नो डाउट तुम बहुत पीछे रह जाओगे। तो तुम्हें अगर अपडेटेड रहना है तो उसमें ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसका अपडेशन वैसे भी वर्चुअल वर्ल्ड से भी कनेक्ट होकर कर सकते हो। उनका ऐप डाउनलोड कर लो, और तुम्हें लग रहा है तो लिमिटेड फंड्स 5-10,000 के साथ भी तुम जान सकते हो कि उसमें ट्रेडिंग कैसे होती है, और उसके अंदर एक्टिव ट्रेडर बनने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपके पास एक अच्छी डिग्री नहीं आती। द मोमेंट यू विल हैव गुड डिग्री, नो डाउट आपने जाना चाहिए आगे, क्योंकि उसमें बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज है। जनरली ऐसा होता है, सेंचुरी में एक बार लोगों को चांस मिलता है कि वेल्थ एक्सपोनेंशियल ग्रो करने का। 100 साल में एक बार हर किसी जनरेशन को एक मौका मिलता है। मुझे लगता है फॉर्चुनेटली हम वो जनरेशन के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर आजकल इतनी नई चीज़ें आ रही है। व्हेन मनी चेंजेस इट्स फेस, इट्स अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी टू अर्न गुड। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस करियर में तुम बिल्कुल पीछे मत रहो, मगर एक बार उतना पैसा दिखेगा ना तो आप इधर का सीए करियर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले सीए करियर पे फोकस रखो। द मोमेंट यू बिकम सीए, फिर तो ये वर्ल्ड तुम्हारे लिए। So, sir, after becoming CA or in this journey, what are the habits or what is the skill set that we must inculcate in ourselves so that we will be perfect for that financial field and financial world? See, as far as the hobbies are concerned, तो तुम तुम्हारे हॉबीज साइड बाय साइड परसिव कर ही रहे हो, तो उसमें खुश रहोगे। हैबिट्स की बात करूँ मैं, तो हैबिट्स के तक तुम्हें एज अ फाइनेंस करियर बनाने के लिए रीडिंग ऑफ फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स ज़रूरी है। इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, ये पढ़ना चाहिए। आपको स्टार्टिंग में बहुत बोर होगा, क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजी भी नहीं समझेंगे, तो हफ्ते में एक ही पेपर पूरे हफ्ते भर पढ़ो, कोई बात नहीं है। आपको रोज़ का रोज़ पेपर खरीदने की या लाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही पेपर हफ्ते भर पढ़ो, मगर उसको पूरा पढ़ो। फिर अगले हफ्ते वापस दूसरा पेपर लेकर आओ, उसको 4 दिन में पढ़ने की कोशिश करो। धीरे धीरे आपका ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे एक दिन में आप वो पूरा पेपर पढ़ पा रहे हो। दूसरी बात, आप हो सके उतना फ्री टाइम में CNBC, NDTV आवाज़ ऐसे न्यूज़ चैनल्स देखो, जिसके थ्रू आपका थोड़ा बिजनेस लेवल का नॉलेज गेन हो पाए। और आप तो बेस्ट फेज में जी रहे हो, जहाँ पे शार्क टैंक इंडिया में भी आ चुका है, तो आप वो भी देखो ताकि आपके बिजनेस IQ लेवल बढ़ पाए। हम लोग एज अ CA खुद को हर बार एक कंसल्टेंट बोल के देखते हैं, मगर हम ये क्यों नहीं सोचते एज अ CA हम बिजनेस भी कर सकते हैं। वाई ओनली यू वांट टू बी ए कंसल्टेंट टू अदर, वाई यू कैन नॉट बी ए गुड बिजनेसमैन। सो मैं तो ये बोलूँगा, काफ़ी स्टूडेंट्स ये बोलते हैं सर हम प्रैक्टिस करें, हम जॉब करें, या कुछ लोग तो बोलते हैं हम टीचिंग में आए। मैं बोलूँगा चौथा बड़ा अपॉर्चुनिटी हम छोड़ रहे हैं, वो है बिजनेस करने का, जो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी, इन तीनों से बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो हम ऑलरेडी फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, हम लोगों ने एक्चुअली बिजनेस की तरफ ध्यान देकर एज अ बिजनेसमैन आगे बढ़ना चाहिए। Because we are very good at law, we are very good at finance, we are good at taxation. So who can do better business than us? So, sir, lastly, any message for our students? The message for the students is very simple यार। देखो, मैंने काफ़ी बार स्टूडेंट्स को देखा है, 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं अपने करियर में। एक होते हैं जो बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत स्टूडियस होते हैं, सिंसियर होते हैं स्टूडेंट, सिंसियर होते हैं, और वो लोग अपने करियर पे ही फोकस करते हैं और सोचते हैं कि ये मैं CA बनने के बाद पूरी लाइफ एंजॉय कर लूँगा। बहुत सही है, एकदम सही है, बट उस जर्नी में बीच बीच में आपको ब्रेक्स मिलते हैं। हर एग्ज़ाम के बाद आपको 2 महीना 1 महीना ब्रेक होता है। मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग उस ब्रेक को भी यूज़ करना चाहो, उसको उस ब्रेक को जीना चाहिए आपने, क्योंकि ऐसा हो जाएगा 4 साल बाद कि आपको विदाउट ब्रेक काम करने की आदत हो जाएगी, और शायद अगले 40 साल भी आप विदाउट ब्रेक ही काम करोगे। आपके अकाउंट में शायद 4 करोड़ रहेंगे या 40 करोड़ रहेंगे, उसकी क्या वैल्यू है अगर आप खुद ही ज़िंदगी नहीं जियो तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि आप वर्क लाइफ बैलेंस रखो, आप ज़िंदगी भी जियो और साथ साथ में आपका करियर की तरफ भी ध्यान दो। एट द सेम टाइम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ्रेंडशिप के नाम में जाते हैं और करियर की तरफ ध्यान ही नहीं देते। आई वुड से दैट इज़ द अदर एंड ऑफ इट। वो कुछ काम का नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको तब वैल्यू करते हैं जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हो। जब वो लोग करियर में कुछ बन जाते हैं और आप नहीं बनोगे, तब आपको बहुत बुरा लगेगा इस चीज़ का। सो साथ में CA बन जाओ, सब लोग साथ में CA बनो। जब राइट अपॉर्चुनिटी है पढ़ने का, एग्ज़ाम के पहले, क्लासेस के अंदर, क्लासेस बंक नहीं करते हुए आपने प्रॉपर्ली पढ़ना चाहिए, और अपडेटेड रखो खुद के बारे में। एज आई टोल्ड कि सेंचुरी में एक बार चांस मिलता है, लकीली आपकी जनरेशन को वो चांस मिला है, तो ये चांस मत छोड़ो, ये चांस मत छोड़ो। इसमें इतना वेल्थ क्रिएट कर सकते हो आप कि आप आपकी ज़िंदगी आराम से जी पाओगे। सो देयर आर मेनी न्यू कॉन्सेप्ट्स कमिंग इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। Stay focused, stay tuned, be updated by reading, not in trading. And the moment you become chartered, then go for trading also. Thank you so
सर फॉर दिस एंड आपने आपके इतने इम्पोर्टेंट टाइम में से हमको टाइम दिया और एक बार में हाँ बोल दिया एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, माय प्लेजर. कीप वॉचिंग फॉर more such content. This is Vidhi Goda signing out. Thank you.